Hello, dear students. Today's topic is The Price of Flowers. It's a story written by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. Or P.K. Mukhopadhyay was born in 1873 and died in 1932. Was born in Bengal, India, and graduated from Calcutta University in 1895. He left for England in 1901 to return to India as barrister at law. Inspired by Rabindranath Tagore, he became one of the foremost writers of short stories and novels. The Price of Flowers is a story by Prabhat Kumar Mukhopadhyay. The story is about an Indian man named Gupta who meets a poor girl in England. He meets her when he is having food from a restaurant. The girl asks the cashier of the restaurant whether Mr. Gupta is an Indian. Gupta wants to know why the girl made the inquiry. He understands that the girl does not earn much and can afford lunch only on Saturdays, the day in which she gets her weekly payment. The next Saturday, Mr. Gupta meets the girl in the restaurant, talks to her, and understands that the girl's brother is a soldier in India. Her name is Alice, and people call her Maggie. Her mother wants to know more about India as she is worried about her son's safety. Gupta visits the girl's mother at her home and tells her that India is a safe country. The girl's brother Frank sent the family a ring from India. He believes that the crystal in the ring can show them people who are very far from them. The family wants Gupta to look at the crystal and see whether he can see Frank in it. They believe that Gupta will be able to see as he is a Hindu from India. However, Gupta cannot see anything when he looks at the crystal. A few months later, Gupta learns that Frank is fighting in a war in Punjab. The mother becomes ill, worrying about her son. They do not know whether he is alive or not. The mother wants Gupta to look at the crystal again and see whether he can see Frank. Maggie secretly asks Gupta to say that Frank is fine even if he cannot see him. Gupta tells Mrs. Clifford, Maggie's mother, that he saw Frank in the crystal and he is well. Later, the family learns about Frank's death. Before Gupta leaves for India, Maggie visits him and gives him some money so that he can buy flowers and place them on Frank's grave. Gupta promises to fulfill her wish. He knows that she worked really hard for the money. Offering that money to buy flowers for her brother's grave would give her a lot of peace. प्यारे बच्चों, ये कहानी द प्राइस ऑफ फ्लावर्स एक खूबसूरत कहानी है मिस्टर गुप्ता के बारे में, जो कि एक इंडियन है और बरतानिया में किसी काम या किसी जॉब के सिलसिले में रुके हुए हैं और वहाँ के एक रेस्टोरेंट में जब एक दिन चले गए। सैटरडे का दिन था। एक गरीब लड़की एक टेबल पे खाना खा रही थी और मिस्टर गुप्ता की तरफ बार बार देखती थी, और जब वहाँ से उठ के चली गई तो केशर से पूछ करके ये चली गई कि क्या वो बंदा हिंदुस्तानी है जो वो खाना खा रहा है। और अपना खाना ख़त्म करने के बाद मिस्टर गुप्ता उस केशर से मालूम करता है कि ये लड़की मेरे बारे में क्या पूछ रही थी, और उसने कहा कि ये पूछ रही थी कि आप हिंदुस्तानी हैं। और ये मिस्टर गुप्ता पता करते हैं कैशियर से कि क्या आप उस लड़की को जानते हैं, मेरे बारे में क्यों पूछती थी। उसने कहा मैं तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ हमारे मुल्क में सैटरडे जो है पे डे होता है, यानी सैटरडे को तनख्वाह मिलती है और तनख्वाह के दिन अक्सर ये हमारे होटल में आकर के खाना खाती है। और मिस्टर गुप्ता नेक्स्ट सैटरडे उसी टाइम उसी होटल में जा कर के देखते हैं कि वो लड़की उसी टेबल पे खाना खा रही है, और सीधा वहाँ पे चला जाता है, उनके साथ बात करता है लड़की के साथ। और ये पता चलता है इसको कि इस लड़की का एक इकलौता भाई है और वो हिंदुस्तान में एज सोल्जर काम करता है, फौजी की ड्यूटी दे रहा है। और वो ये कहती है कि
मेरी माँ बहुत परेशान है मेरी भाई को लेकर के, क्योंकि वो बहुत ज़ोर-सा हो गया। हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली, कोई अता पता उनका नहीं है। और मेरी माँ अक्सर ये कहती है कि कोई हिंदुस्तानी अगर मुझे मिल जाता तो मैं पता करती कि लोग वहाँ कहते हैं कि वहाँ मलेरिया, कॉलरा और दूसरे सांप वगैरह बहुत होते हैं, उन लोगों को काटते हैं। और मिस्टर गुप्ता एक माँ की खातिर मैगी के साथ उनके घर चला जाता है और वहाँ पे भरोसा दे देता है इनको, माँ बेटी को, कि हिंदुस्तान एक सेफ कंट्री है, वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद अगली दफ़ा जब मिस्टर गुप्ता उनके घर जाते हैं तो एक रिंग वो दे देते हैं इसको, जो कि फ्रैंक ने इनको भेजी होती है, अपने लड़के ने, कि जो कि हिंदुस्तान में तैनात है। उन्होंने एक रिंग भेजी हुई है। उस रिंग में एक क्रिस्टल लगा हुआ है जिसको क्रांक हम बोलते हैं कश्मीरी में या उर्दू में। और मिस्टर गुप्ता ने उस फ्रैंक ने चिट्ठी में ये लिखा था कि अगर आपका कोई अपना करीबी चहीता आपसे बहुत दूर है और आप उसके बारे में कुछ देखना चाहते हैं, इस क्रांक की तरफ, इस क्रिस्टल की तरफ बहुत गौर से देखने से आपको उसकी शक्ल, वो क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, उठता बैठता कैसे है, वो सब कुछ दिखाई देगा। और उन्होंने कोशिश की थी उस अंगूठी से देखने की, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया था। और मिस्टर गुप्ता को वो चाहते हैं कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, हो सकता है कि आपको इस अंगूठी में से कुछ दिखाई दे। और मिस्टर गुप्ता जानता था कि ये चीज़ें जो हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए भेजी जाती हैं। और वो सोचता था कि मुझे लगता है कि सिर्फ हिंदुस्तान में इस तरह के बेवकूफ़ लोग होते हैं, मुझे नहीं पता था कि अंग्रेज़ों तक भी ये बेवकूफ़ी फैली हुई है। और मुझे पता था कि अंगूठी में से कुछ नहीं दिखना था, लेकिन मैंने माँ बेटी का दिल रखने के लिए कहा कि हाँ, मुझे फ्रैंक दिखाई देता है इस क्रिस्टल से, और वो बहुत अच्छी तरह है, सेहतमंद है, उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और एक दिन जब मिस्टर गुप्ता को निकलना होता है घर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, तो वो देखता है कि मैगी आई हुई है सुबह उनके डेरे पे, उनके घर, और ये बताती है कि भाई मर गया है वहाँ हिंदुस्तान में। और कुछ पैसे वो दे करके जाती है मिस्टर गुप्ता को कि इन पैसों से आप फूल खरीदें, और फिर डेरा गाजी खान का जो इलाका है वहाँ पे उसकी भाई की कब्र है, और उस कब्र पे जा कर के मेरे लिए, मेरे बदले मेरी भाई की कब्र पे वो फूल निछावर कर देना। मिस्टर गुप्ता सोचता है अंदर से कि इसको कहूँ कि ये 10 रुपये जो आप मुझे देती हो, ये रख लो, अपने किसी काम आएंगे, हमारे वहाँ फूल बहुत होते हैं, तो मैं बहुत सारे फूल लेकर के जाऊँगा और आपके भाई की कब्र पे रख दूँगा। लेकिन ये साथी सोचता है कि जो खुशी इसको ये पैसे देने से इसको मिलती है, वो खुशी ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इसको ये बता दूं कि आप ये पैसे रख लो। और ये चुपचाप मिस्टर गुप्ता ये पैसे उठा करके जेब में रख देता है और चला जाता है हिंदुस्तान के लिए, इन पैसों से फूल खरीद के उसके भाई की कब्र पे ले जाने के लिए। और ये कहानी है रिश्तों के बारे में, कि अपने चहीते जब अपने अपनों से दूर होते हैं, और वो भी तब जब वो इकलौता एक मर्द हो घर में और उसके पीछे सिर्फ औरतें हों। और ये भी इस कहानी में दिखाया जाता है कि एक सोल्जर की ज़िंदगी कैसी होती है, कितनी कठिन होती है, उनके घर वाले कितने परेशान होते हैं, उनकी और इस कहानी में ये भी बताया जाता है कि एक ऑप्रेसर और ऑप्रेसर, यानी गुलाम और गुलाम बनाने वाला, ये जो दो कौमें होती हैं दरअसल दोनों मजलूम होती हैं, और इन्हें दोनों को आज़ाद करने की ज़रूरत है। जिस तरह वो गांधी वाला कॉन्सेप्ट उसमें है, मंडेला मंडेला वाला वो लेसन है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें जो थीम है कि गुलाम को भी आज़ाद करने की ज़रूरत है, उसी तरह जो गुलाम बनाता है उसको भी आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो नफ़रत का कैदी होता है। और यहाँ पे भी सेम है कि दोनों कौमें जो हैं एक तरह से
बेबस होती है, एक तरह से परेशानी में होती है। ये दिखाया गया है इस कहानी में। काफ़ी खूबसूरत कहानी है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।